Hello everyone, welcome to my channel Dr. Sheetal Gupta, and today's topic is aminoglycosides. So aminoglycosides are the group of antibiotics which covers the gram-negative bacteria. So bacteria are divided into four groups, that is gram-positive, gram-negative, aerobic as well as anaerobic. So these are the bacteria जो चार ग्रुप में डिवाइडेड होते हैं. Other than bacteria, other pathogens are virus, fungus, parasites, spirochetes. So these are the different pathogens जो कि disease करवाते हैं. So aminoglycosides antibiotics covers the gram-negative bacteria, especially Klebsiella, E. coli, Pseudomonas, and which are somehow difficult to treat. These are the bactericidal drugs. That means ये बैक्टीरिया को खत्म करती है. नेम ऑफ द ड्रग्स. इस ग्रुप में क्या क्या ड्रग्स आती हैं उसको रटने के लिए, याद करने के लिए हमने जिंगल बनाया, दैट इज सजगता सेन. सा फॉर स्टेप्टोमाइसिन, जा जेंटामाइसिन, का कैनामाइसिन, त टोब्रामाइसिन, एस सिसोमाइसिन, ए अमिकासिन एंड द नेटलमाइसिन. And other than these drugs, two more group drugs, that is neomycin and pramycin, are also belongs to this group of antibiotic. इनको तो अलग से क्यों रखा हुआ है? बिकॉज दीज आर द टू ड्रग्स विच आर टू टॉक्सिक फॉर सिस्टमिक एडमिनिस्ट्रेशन. सिस्टमिकली हम इन ड्रग्स को देते हैं तो बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स दिखाते हैं. सो दे आर यूज टॉपिकली दैट मीन्स लोकली. सो लोकली दे आर अप्लाइड फॉर ऑन द स्किन एंड आईज एंड द ईयर्स. सो the most common antibiotic, that is soframycin. The formula of soframycin is the framycitin. So soframycin most common ointments होता है available for the कटने पे, जलने पे, कहीं पर भी अगर स्किन की प्रॉब्लम हो रही हो तो आपका मेडिकल वाला सबसे पहले आपको सोफ्रामाइसिन देता है. ईयर एंड आई ड्रॉप्स के फॉर्म में अवेलेबल है. सो फ्रामाइसिटिन एज वेल एज न्यूमाइसिन, दीज आर टू ड्रग्स, ये they are used only topically. So neomycin is also used topically for the infected wounds or the burns or the ulcers in the external ear infections and the conjunctivitis. So कान के और आंखों के conjunctivitis, आंखों के infection में they are available in the drop forms, और burn, wound and ulcer इसमें आपको they are available in the ointment forms. It is highly toxic to the internal ear, mainly the auditory, and to the kidney. So it is not used systemically. So two drugs, that is neomycin and framycitin, they are used only locally, that is only topically, while other drugs like streptomycin, gentamicin, kanamycin, tobramycin, cisalmycin, these are used systemically. And one more important point for this group is that they are available only in the injection form. No oral preparations are available, so they can be given either intramuscular or intravenous. The most common drug used in this group is, one is gentamicin. The normal dose for the adults are 80 mg, and the amikacin, the normal dose is 500 mg. The gentamicin is costing around 8 to 10 rupees, while amikacin is costing around 120 to 150 rupees. They both belong to same group, they both have same mechanism of action, they both extend for the gram negative bacteria, but it's your choice कि आपको अपने पेशेंट को जेंटा से ट्रीट करना है और अमिका से ट्रीट करना है. इट्स ऑल डिपेंड ऑन कंडीशन ऑफ द पेशेंट, द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द पेशेंट. While the streptomycin is the drug which is used as anti-tubercular. इसको हम लोग बोलते हैं ATT, एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट. टीबी के पेशेंट्स में द ड्रग्स यूज्ड आर HRZES, H for isoniazid, HRZES, H for isoniazid, R for rifampicin, Z for pyrazinamide, E for ethambutol, and while S for streptomycin. So streptomycin is the antibiotic, but it is used as an anti-tubercular treatment. Why? Because it is available only in the injection form. इसलिए जो first four groups होते हैं, drugs होती हैं, that is HRZE, वो orally available है, while streptomycin injection के form में available है. Now next, the mechanism of action. ये drugs कैसे काम करती हैं? So as I already told कि these are the bactericidal drug, बैक्टीरिया को खत्म करती हैं. So first point is transportation of the aminoglycoside through the bacterial cell wall and the cytoplasmic membrane. आपने injections दिए हैं either intramuscular or intravenous, या आपकी बैक्टीरिया की cell wall और cytoplasmic membrane के अंदर जाएंगे. Secondly, they bind with the ribosomes and hence resulting in the inhibition of the protein synthesis को रोक देंगे. The third important point, streptomycin जो होता है, it binds with the 38 ribosome, while all other drugs binds with 58 ribosomes.
So after exposure to aminoglycosides, bacteria become more permeable, ions, amino acids and even the protein leaked out, followed by bacterial cell death. आपने अमाइनोग्लाइकोसाइड इंजेक्शंस दिए, इंजेक्शन आपके बैक्टीरिया के सेल वॉल के अंदर गए, सेल मेम्ब्रेन के गए, सेल मेम्ब्रेन के अंदर उन्होंने आपके रिबोसोम्स के साथ बाइंड किया, प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट किया, एंड एज यू ऑल नो प्रोटीन्स इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनिंग द इंटीग्रिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। और अगर प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा तो आपकी सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल वीक हो जाएगी, दे बिकम मोर परमेबल, इसलिए बैक्टीरिया का जितना भी आयंस अमाइनो एसिड्स होते हैं और जो प्रोटीन्स होता है वो सब लीक आउट होकर बाहर आ जाएगा एंड फॉलोड बाय बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ अमाइनोग्लाइकोसाइड्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो इस ग्रुप से आते हैं वो पहला आता है कि फर्स्ट इज कि इट इज बैक्टीरिसाइडल ड्रग, नंबर 2 कि ये आपको रिबोसोम्स के साथ बाइंड करती है, नंबर 3 कि स्ट्रेप्टोमाइसिन 38 के साथ बाइंड करते हैं व्हाइल ऑल अदर ड्रग्स 50S के साथ बाइंड करते हैं, नंबर थर्ड पॉइंट। So these are the three most important MCQs. Now comes to the side effect. इस ड्रग के क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं? तो फर्स्ट इज द ऑटोटॉक्सिसिटी, मेनली ये कान को खराब करती है, और सेकेंड इज द किडनी। सो दो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट जो इस ग्रुप के आते हैं दैट इज ऑटोटॉक्सिसिटी एंड द नेफ्रोटॉक्सिसिटी। अब ऑटोटॉक्सिसिटी में आपका एक सिस्टम होता है कॉक्लियर सिस्टम, एक होता है वेस्टिबुलर सिस्टम। कॉक्लियर सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग व्हाइल वेस्टिबुलर सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग योर बैलेंस। सो कॉक्लियर सिस्टम को भी डैमेज करेगा ये तो परमानेंट डेफनेस होगी, वाइल वेस्टिबुलर सिस्टम को भी ये डिस्टर्ब करेगा तो आपको अटेक्सिया, डिजीनेस, निस्टैग्मस ये सब प्रॉब्लम्स आएंगी। सो नाउ फर्स्ट कम्स टू द ऑटोटॉक्सिसिटी। सो ड्रग्स आर कंसेंट्रेटेड इन द लैब्रिथिन फ्लूइड। द नेक्स्ट एमसीक्यू, आपका जो इनर ईयर होता है दैट इज लैब्रिथिन, उसके फ्लूइड के अंदर स्टोर होता है एंड दे आर स्लोली रिमूव फ्रॉम इट व्हेन द प्लाज्मा कंसंट्रेशन फॉल्स। जैसे जैसे आपका ब्लड में इसका कंसंट्रेशन कम होता जाएगा ये आपके इनर ईयर से रिलीज होते हैं ब्लड में आता जाएगा। सो इफ द प्लाज्मा कंसंट्रेशन इज टू हाई, अगर आपने ज्यादा डोज में दे दिया है, ओवरडोज हो गया है, सो अगर प्लाज्मा का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हाई होगा तो एक टाइम के बाद आपका, क्योंकि प्लाज्मा कंसंट्रेशन कम नहीं होगा तो ये फ्लूइड लैब्रिथिन फ्लूइड से निकल के ब्लड में नहीं आएगा एंड मोर फॉर द मोर ड्यूरेशन ऑफ टाइम ये लैब्रिथिन फ्लूइड के अंदर रहेगा एंड इट विल कॉजेज डेफनेस. So autotoxicity is high if plasma concentration of drug is persistently high and above a threshold. The vestibular and the cochlear sensory cells and the hairs undergo concentration dependent destructive changes, so the deafness is permanent. Second, aminoglycosides eardrop also causes ototoxicity when instilled in patient with perforated eardrum. परफोरेटेड मतलब छेद होना, ईयर ड्रम मतलब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। तो अगर आपके कान के टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में छेद हो जाए तो उसको बोलते हैं, अगर वो पहली बार हो रहा है तो उसको बोलेंगे ASOM, दैट इज एक्यूट सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया। और अगर बचपन से आपको प्रॉब्लम है, फिर मवाद निकलने लगता है, फिर ट्रीटमेंट लेते हो, साल 2 साल के बाद फिर आपके कान में से पस आने लगता है, फिर आप ट्रीटमेंट लेते हो, तो ये कॉन्स्टेंटली अगर चेंजेस चलते रहते हो तो नाउ इट इज नोन एज CSOM, क्रॉनिक सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया। सो अगर कान के पर्दे से अगर कान से पस आ रहा है तो इसका मतलब है कान के पर्दे में छेद है, पहली बार है तो ASOM, बार बार होता रहता है तो CSOM। अब इस केस में अगर आपने अमाइनोग्लाइकोसाइड का ईयर ड्रॉप दे दिया तो ऑब्वियसली कान के पर्दे में छेद है तो आपका एक्सटर्नल ईयर से होते हुए या आपका ड्रॉप इनर ईयर में जाएगा, इनर ईयर में लैब्रिथिन फ्लूइड में जाएगा एंड इट कॉजेज ऑटोटॉक्सिसिटी। सो द ईयर ड्रॉप्स, अमाइनोग्लाइकोसाइड ईयर ड्रॉप्स आर कंट्राइंडिकेटेड, इसके ईयर ड्रॉप्स नहीं देते हैं इन पेशेंट ऑफ ASM एंड CSOM. Second one is the vestibular damage. So if vestibular damage occurs, then the first symptom is headache. Headache appears first, followed by nausea, vomiting and the dizziness. Nystagmus, vertigo and the ataxia. So nystagmus is involuntarily purposeless movement of the eyeball, आपकी eyeball हिलती रहेगी. वर्टाइगो दैट मीन्स चक्कर आते रहेंगे एंड अटेक्सिया मीन्स इम्प्रॉपर गेट, आपकी चाल चेंज हो जाएगी, चलने का स्टाइल चेंज हो जाएगा, दैट इज नोन एज अटेक्सिया। सो अगर वेस्टिबुलर डैमेज होना होगा तो ये सारे सिम्टम्स आपके अंदर आ जाएंगे। द नेक्स्ट वन इज द नेफ्रोटॉक्सिसिटी, ये किडनी को खराब करता है, किडनी में भी स्पेशली ट्यूब्यूल्स को डैमेज कराएगा। ट्यूब्यूल्स मतलब the tubules are responsible for mechanism of concentration of urine, कि यूरिन जो कंसंट्रेट होती है उसमें ट्यूबुल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और इस सिस्टम को बोलते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। सो
ये जो ड्रग होती है मेनली ट्यूबल्स को डैमेज कराती है, तो इसलिए आपका यूरिन का जो कंसंट्रेशन पावर है वो कम हो जाएगा. सो लॉस ऑफ यूरिन कंसंट्रेशन पावर, डिक्रीज इन द जीएफआर. होगा जीएफआर कम होगा तो ऑब्वियसली नाइट्रोजन जो होता है नाइट्रोजनस प्रोडक्ट वो आपकी बॉडी में रिटेन करेंगे. एल्ब्यूमिनूरिया, यूरिन में से एल्ब्यूमिन निकलेगा. सो दीज आर द प्रॉब्लम जो होंगी, बट इट इज रिवर्सिबल इफ द ड्रग इज डिसकंटिन्यूड. अगर आप ड्रग को डिसकंटिन्यू कर देते हो तो ये सारे चेंजेस वापस रिवर्सिबल हो जाएंगे. नेक्स्ट साइड इफेक्ट इज द न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज. न्यूरोमस्कुलर मतलब आपके जॉइंट्स. सो ऑल अमाइनोग्लाइकोसाइड रिड्यूसेस द एसिटाइलकोलिन रिलीज फ्रॉम द मोटर नर्व एंडिंग. एज यू ऑल नो कि हमारे जो नर्व ट्रांसमिशन होता है उसमें आपके जॉइंट्स में जब नर्व का कंडक्शन होता है तो जॉइंट्स के अंदर आपका एसिटाइलकोलिन नाम का एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि आपके इस नर्व कंडक्शन को आगे फॉरवर्ड करता है. सो अमाइनोग्लाइकोसाइड्स कैन कॉज रिड्यूसेस द एसिटाइलकोलिन रिलीज and it is higher with the streptomycin and the neomycin. एंड अगर ये साइड इफेक्ट्स पेशेंट में आ रहे हैं सो इट इज पार्शली एंटागोनाइज बाय आईवी कैल्शियम सॉल्ट. आप आईवी इंजेक्शन कैल्शियम को दे दो तो ये वाला एक्शन दैट इज न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज वाला एक्शन पार्शली एंटागोनाइज्ड हो जाएगा. नाउ कम टू द यूजेस. आप इस ग्रुप को कहाँ कहाँ यूज करोगे, तो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को कवर करने के लिए ग्रुप होता है. सो पेशेंट इन रेस्ट्रिक्टेड वार्ड्स मतलब जहां पर एंट्री बहुत रेस्ट्रिक्टेड रहे, स्पेशली दैट इज इन द आईसीयू और विद द पेशेंट ऑन द ट्रेकोस्टमी और ऑन द रेस्पिरेटर्स दैट मीन्स ऑन द वेंटिलेटर मशीन्स. पोस्ट ऑपरेटिव निमोनिया पेशेंट्स और विद द पेशेंट्स विद इम्प्लांट जिनके अंदर इम्प्लांट्स डले हुए हैं और इन पेशेंट इन आईसीयू. सो इन दिस केसेस में सभी में फॉर टू कवर द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हम ये ड्रग देंगे. Gentamicin is very valuable for preventing and treating the respiratory infections in the critically ill patients and in those with the impaired host defense. Because critically ill patients में impaired जहाँ पर immunity बहुत low जाती है वहाँ पर gram negative infections बहुत ज़्यादा common हो जाते हैं. So again, gentamicin is the drug of choice. Next one is the Pseudomonas, Proteus and the Klebsiella. These all are gram negative bacteria. तो इनका अगर इनका इन्फेक्शन हो रहा हो, बर्न का पेशेंट है, यूटीआई दैट मीन्स यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, निमोनिया, द लंग एब्सेस, ऑस्टियोमाइलिटिस, आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन, ऑस्टियो मीन्स बोन, बोन में अगर इन्फ्लेमेशन हो रहा है दैट इज नोन एज ऑस्टियोमाइलिटिस, मिडिल ईयर इन्फेक्शंस एंड द सेप्टिसिमिया. इन सब केसेस में द ड्रग ऑफ चॉइस अमाइनोग्लाइकोसाइड्स. meningitis that is inflammation of meninges, that means brain infection हो रहा है यहाँ पर पेशेंट को, so it is caused by gram negative bacilli, again aminoglycosides. SABI means subacute bacterial endocarditis. itis means inflammation, endocardium मतलब हार्ट के सबसे अंदर की लेयर. तो नॉर्मली हार्ट का प्रेशर इतना ज्यादा होता है, हार्ट की कॉन्ट्रेक्टिलिटी इतनी ज्यादा होती है कि कोई भी बैक्टीरिया हार्ट के अंदर नहीं रुक पाता है. बट देर इज वन कंडीशन विच इज नोन एज सबएक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस जहां पर बैक्टीरिया का इन्फेक्शन एंडोकार्डियम के अंदर होता है. So in this case again aminoglycoside are the drug of choice. So किसी भी critically ill patients में जहाँ पर भी infection बहुत severe हो रहा है, जहाँ पर भी intensity बहुत severe है, कोई post operative patients है, कोई brain abscess का patient है, इन सभी cases में we can give aminoglycosides because they cover the gram negative